a video lecture in the series of discrete mathematics paper discussion. So I hope that it is helping you, and so let's move ahead to the next question, which is our question number 4, right? On this paper of June 2011. So the question is, there are two dice, right? One red and one white are rolled. Two dice are rolled. What is the probability that the white die turns up a smaller number than the red die, right? So to solve this question, what you have to do is, first take two dice, right? First take two dice. So this is your question number 4a. Okay, so you have two dice. One is white, the second is your red, right? And the question is that on the white die always a greater number, and red will have the less number, or you can say the white will have the less numbers as compared to the red, you know? So let's read it again, right? So the probability that the white die turns up a smaller number, so white will turn up a smaller number and then the red die. Okay, so we will find the probability in a way, right? So first of all, you must know the formula for the probability. So formula for the probability will be, or it is, right, number of possible outcomes, right? Number of possible outcomes divided by total number of outcomes. यही फॉर्मूला होता है ना? हमने स्कूल में भी पढ़ा है. एंड ओके, सो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स विल बी white die, है ना? So on a white die will be a small number, so it can be 1. A small number is 1. So red can, so what are the other possibilities on the red? It can be 2, because white will have the less number as compared to the red. So this is the first possibility, right? That white will have turn up to the number 1 and the red turn up to the number 2, right? So again, white will have number 1 and it can be number 3, right? So there are the possibilities for the for this if white only occurs, white turns up only 1 and the red will turn up the greater number than the white, right? So it can be 5, again it can be 6. So this is the case जब white पर हमेशा less number आता है as compared to the red one. So this is the possibility. These are the possibilities, and other than this, if white turns up to 2, then it can be 3, right? 4, 5 and 6, right? और अगर हमारे पास वाइट को क्या हो 3 नंबर आए तो क्या होगा? इसके साथ कितनी पॉसिबिलिटीज है कि इसके पास 4 आए, 5 आए, 6 आए. अदर पॉसिबिलिटीज भी हैं, 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, लेकिन वी हैव टू कंसिडर ओनली दोज पेयर when the white will have the less number and the red will have greater number. So in this case 3 3 3 and 4 के लिए 3 possibilities होंगे. Let me write here white and red, right? So white पे 4 आ सकता है,
तो 4 के साथ तो अगर 5 रेड पे आएगा तो इससे बड़ा होना चाहिए, तो 5 और 6, सो देर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज। और अगर वाइट पर 5 आता है ना, आप रोल करते हैं 5 आता है, तो यहाँ पर क्या होगा, ओनली 6, सो देर इज ओनली 1 पॉसिबिलिटीज। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट। 11 पर, और ये हुई 13 14 एंड 15, ठीक है। तो ये सब पॉसिबिलिटीज, तो 15 पॉसिबिलिटीज। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स विल बी 15, राइट, 15। एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, 2 डाई हैं, हर एक डाई पे मैक्सिमम कितने नंबर होते हैं, 6, सो 6 इंटू 6 36, ठीक है। अब दोनों डाई रोल कर रहे हो और आपको वही वाले आउटकम्स कंसीडर करने हैं जहां पर वाइट पर कम नंबर आए एज कंपेयर टू द रेड, ठीक है। तो कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, है ना। तो ये सारे केसेस हैं सब, वाइट will turn up to the less number as compared to the red. So 15 by 36 will be your 5 by 12. So this is your answer, right? आसान है ना। Let's move to the another question, right? Okay, this is your question number 4B, right? सो फोर्थ बी पार्ट है, वो है कि देख लेते हैं एक बार। ये है बी पार्ट, राइट। और बी पार्ट आपका कहता है कि दिस इज योर बी पार्ट, राइट। व्हाट इज ड्यूअलिटी प्रिंसिपल and find dual of A union B intersection C, right? So question 4B is yes, yeah, this is your B part. Okay, so number 4B, so कहते हैं ड्यूअलिटी प्रिंसिपल क्या है। तो मैं आपको एक लाइन में इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। व्हाट इज ड्यूअलिटी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में क्या है कि आपको जो यूनियन है, राइट, उसको इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर देना है, चेंज कर देना है, और इंटरसेक्शन को यूनियन। सो दिस इज योर ड्यूअलिटी प्रिंसिपल, राइट। ओके, सो जो क्वेश्चन है वो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, राइट। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, राइट। तो फाइंड ड्यूल ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सो क्या होगा बताओ। सो इट विल बी A union B intersection C. So the dual of this, so dual of this function, right, or you can say any expression, say, will be A intersection B union C. That's your answer. So you have to write in this sentence, like we interchange, right? We interchange union to this is your intersection, right? So write intersection and intersection to union. This is your duty. So this is your definition.
और ये आपका ड्यूल हो गया, राइट। तो ये दिस इज वेरी इजी। सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन विच इज योर again from your logic, yeah, truth tables based questions, right? So C question is P intersection Q intersection not P. So you can also read this as P disjunction Q disjunction not P, right? And this is P, if P then Q, if only if, this symbol is for if only if, and not P or Q is a tautology. So first of all, what we have to do, we have to know that what is a contradiction and what is a tautology. Okay. So let me explain you the concept of contradiction and tautology. So first of all, contradiction, right? So contradiction क्या होता है? Contradiction होता है कि जब किसी एक्सप्रेशन की, है ना, या किसी प्रोपोजिशनल लॉजिक की जो सारी वैल्यूज हैं ट्रूथ टेबल में, है ना, आउटपुट में जो भी ट्रूथ टेबल होगी और वहाँ पर सभी फॉल्स हों, ठीक, सभी कॉम्बिनेशन के लिए अगर ये फॉल्स है तो ये क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन, राइट? क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन। और इसका अपोजिट होता है टॉटोलॉजी, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। टॉटोलॉजी, टॉटोलॉजी में क्या होगा? अगर किसी प्रोपोजिशन लॉजिक के लिए ट्रूथ टेबल की आउटपुट में सब ट्रू हो, इट कैन बी एनी नंबर ऑफ ट्रू, वो तो डिपेंड करेगा कि आप 4 वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, 3 वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं और 2 वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर सभी के लिए ट्रू है तो इट विल बी टॉटोलॉजी। तो यही आपसे पूछा गया है। तो पहला वो कहता है कि प्रूव दैट P दिस कंजक्शन Q कंजक्शन नॉट P। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, और इंटरसेक्शन, कंजक्शन और एंड गेट, है ना। देखो एंड गेट जो होता है ना आपका, वो यही होता है, ये सिंबल होता है, ठीक है। और हम इसको डॉट से करते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में रिप्रेजेंट डॉट से, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर जब हम लॉजिक की बात करते हैं, प्रोपोजिशनल की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, इसको हम बोलते हैं कंजक्शन, नॉट द नॉट गेट। लेकिन सेम ही है, बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग अलग है, ठीक है। तो इसको वो कहता है, इट सेज दैट इट इज प्रूव दैट इट इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, इट इज ए कॉन्ट्रडिक्शन। तो कॉन्ट्रडिक्शन के लिए क्या करना होगा आपको? पी क्यू 2 वेरिएबल है, राइट? पी क्यू 2 वेरिएबल है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले एक आप पी और क्यू के लिए एक टेबल बनाएंगे। तो पी और क्यू के लिए आपने एक टेबल बना दी। 2 वेरिएबल है, तो देयर आर 2 वेरिएबल, 2 to the power 4, 4 पॉसिबिलिटीज विल बी देयर, राइट? तो 4 पॉसिबिलिटीज कौन सी होंगी? एफ, राइट, दोनों फॉल्स होंगे। पी फॉल्स होगा, ये ट्रू होगा, ये आपका ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा और ये ट्रू होगा। यही 4 पॉसिबिलिटीज होंगी। अब आप इसमें पुट करते जाइए, राइट? पी क्यू आ गया आपके पास। अब आपको निकालना है नॉट पी, है ना। नॉट पी भी हम कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि हम इस तरह से चलेंगे तो हम ये मान लेते हैं कि ये एक ब्रैकेट है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो पी एंड क्यू, ठीक है। एंड की टेबल के लिए मैंने आपसे कहा था कि जो लॉजिक गेट्स की मेरी एक वीडियो है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में, वो आप क्लियर कर लें। तो ये कंजक्शन या एंड गेट यही है, क्योंकि सारे के सारे ट्रूथ टेबल के क्वेश्चन उसी से आने हैं, तो आप प्लीज़ वॉच इट, है ना। तो ये एंड गेट है, और एंड गेट सेज इफ बोथ इनपुट्स आर ट्रू इट इवेल्युएट्स टू ट्रू, राइट, अदरवाइज फॉल्स। तो एक ही कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जहाँ पे दोनों ट्रू हैं, अदरवाइज इज फॉल्स होगा, राइट। ओके, सो इट इज फॉल्स, सिंपल। अब नेक्स्ट इज नॉट पी, ठीक है। नॉट पी या निगेशन पी, है ना।
नॉट पी का मतलब क्या होता है, इसको हम निगेट कर देंगे, फॉल्स को ट्रू, ये फॉल्स है ये भी ट्रू, ये दोनों ट्रू है तो ये फॉल्स फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है बस। देन अब ये वाला एक्सप्रेशन हमें कैलकुलेट करना है, मीन्स पी एंड क्यू एंड दिस इज नॉट पी, एंड और कंजक्शन है ना, व्हाट एवर यू से, क्योंकि दोनों सेम ही हैं। अब यहाँ पर आप देखो ये और ये इन दोनों को हमें देखना है, तो एंड कहता है कि जब दोनों ट्रू हैं तो ही ट्रू है, अदरवाइज नहीं है। तो फॉल्स ट्रू क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि यहाँ तो कोई कैसा केस ही नहीं बनना, फॉल्स ट्रू क्या होगा, फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक। तो अब देखो सब आउटपुट जो है, फॉर ईच इनपुट ऑल द आउटपुट्स आर फॉल्स, सो दैट मीन्स इट इज योर कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट को हम प्रूव करते हैं, तो फॉर दैट वी हैव टू insert a page, right? Okay, so let's see this. So next was ये आपका था कि P, if P then Q, right? If P then Q and और यहाँ पे आपका था not P और Q। ये कह रहा था कि टोटोलॉजी है ना, टोटोलॉजी है ये। तो टोटोलॉजी का क्या होता है कि भाई अगर सब आउटपुट्स जीरो आउटपुट्स ट्रू हो, बिकॉज मैंने आई जस्ट एक्सप्लेन यू है ना, सो फॉर दैट अगेन वी हैव टू, बिकॉज दीज आर टू वेरिएबल्स एंड फॉर द टू वेरिएबल्स वी हैव दीज कॉम्बिनेशंस, फॉल्स फॉल्स, राइट, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स एंड ट्रू ट्रू। So first of all, what we have to calculate? We have to calculate this P, Q. So if P then Q, right? तो if P then Q, तो if P is F, Q is F, right? तो क्या होगा, ट्रू। जो F जो P है वही Q है तो ट्रू हो गया। अब यहाँ P F, P is false, Q is true, तो whole statement मतलब P, if P then Q will be true. Remember this. If P is true, Q is false, then whole statement will be false. If P is true, Q is true, the whole statement is true, right? This is P, if P then Q, right? So I will make one video in which I will explain all the truth tables, right? All the truth tables. So you will be, it will be easy for you to grasp this concept of this proposition logic and the truth tables, right? Otherwise you can let me know if you know it, right, in the comment box. So not P or Q. So first of all what we have to calculate the not P, right, not P. So not P will be, or false will be true, false will be true, true will be false and true will be false. It's like your not gate, it inverts the input, तो false है true हो जाएगा, true है तो false हो जाएगा। फिर next is नॉट P और Q, P और Q। अब ये और गेट आ गया, और गेट कहता है कि वन ऑफ द इनपुट इज ट्रू देन द होल स्टेटमेंट और होल थिंग इज ट्रू, राइट। सो हमें ये दोनों कंसीडर करने हैं, तो फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू। ओके, नाउ this is your this statement, right? So we have this, right, we have this. So P, this symbol is your if only if only if, right, if only if only if का होता है कि अगर दोनों स्टेटमेंट सेम है, दोनों वैल्यूज सेम है, ठीक है, दोनों वैल्यूज सेम हैं, तो क्या होगा बताओ, दोनों वैल्यू सेम है तो क्या होगा, ट्रू, राइट, दोनों वैल्यू सेम है तो क्या होगा, ट्रू।
राइट। तो आप क्या करना है, okay, I have done a mistake here. Not P or Q. Not P is this and Q is this. So true, false, true, 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 false, false, right? So false, false is false, false is false, right? So let me correct it. So this is your false. तो इसकी जो टेबल होती है इफ ओनली इफ की, ये जो सिंबल है वो इफ ओनली इफ है, राइट। तो ये कहता है कि बोथ इनपुट्स आर सेम, है ना। तो सो इट विल बी ट्रू, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स। बोथ इनपुट्स आर सेम, बोथ इनपुट्स सेम है आपके, तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। मैं आपको एक वीडियो में सारी ट्रूथ टेबल बता दूंगा। अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये और ये हमें दो कंसीडर करने हैं ना। क्या कंसीडर करना है, या ये वाला, सॉरी, let it be. So this one and this one, तो अब आप देख सकते हो both inputs are same, so true true it will be true, true true it will be true, both inputs are same, f f, so both inputs are same, so it will evaluate to true। अभी मैंने लिखा है both inputs same otherwise false, so यहाँ पर true और ये भी true, तो क्या होगा true। So it proves that it is a tautology, tautology। So tautology is your when all the outputs are true, right? Okay. Now move to the next question, right? Next question is your question 5th A. Question 5th A, which says that prove root 3 is irrational, ठीक है। तो इरेशनल मैं देख लेता हूँ, यही है ना क्वेश्चन, हाँ यही है। प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल, राइट। सो रूट 3 इज इरेशनल, इसका मतलब क्या है कि तो सबसे पहले अगर हम इसको प्रूव करेंगे तो हम इसको कॉन्ट्ररी से प्रूव करेंगे, ठीक है। सो कॉन्ट्ररी क्या होता है कि हम इसको बोलेंगे कि ये रैशनल है ना। ये रूट 3 रैशनल तो है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, बाई कॉन्ट्रडिक्शन, है ना। और बाई कॉन्ट्ररी है कि आप जो है क्या करोगे, है ना, इसको रैशनल मान लोगे, अज्यूम करोगे और उसको फिर आप फॉल्स कर दोगे, है ना। और कह दोगे कि आपका जो ये रूट 3 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इरेशनल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट्स अस assume that root 3 is rational, right? root 3 is rational, root 3 क्या है आपका, rational है, right? then जब रैशनल है तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। रूट 3 है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, रैशनल है, ठीक है। और ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। हम फैक्टर्स फाइंड कर लिए तो इसका मतलब ये रैशनल नहीं, ठीक है, अब कोप्राइम, ठीक है। तो उसको देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू जेड मीन्स पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करते हैं। जेड आपको पता है पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। जेड प्लस जेड नेगेटिव ही आपका नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ये सेट होता है ना, आपको हमने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट ब्लॉक में आपके है ये सेट, है ना। तो इस तरह से ये सिंबल्स हैं एक्चुअली, रियल नंबर्स का जैसे आर होता है, नेचुरल नंबर्स का एन होता है, ठीक है, उसी तरह से, ठीक है। ओके, सो नाउ सो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, राइट। एंड क्या है, ये कोप्राइम, पी क्यू क्या है, कोप्राइम।
अब को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर्स आर वो होते हैं जिनका जीसीडी क्या होता है? जीसीडी क्या होता है? ठीक है, ओके, सो फाइन। सो अब यहाँ हम क्या करेंगे, √3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, ठीक है, और तो हमारा पी हो जाएगा √3 क्यू, ठीक। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है, और या क्यू स्क्वायर हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 3, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, ओके। नाउ सो अब ये क्या कहता है आपको, इससे हम क्या कह सकते हैं, है ना, what we can say from this equation that 3 is the factor of this, okay, this is your square not cube, this is your square not cube, right? So we can see that it shows that, it shows that 3 is a factor of q square, 3 factor of p square, और we can say 3 is a factor of p, है ना भाई। अगर स्क्वायर को डिवाइड करेगा 3, लेट्स से 9 को डिवाइड कर रहे थे तो 3 को भी तो करेगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 इज ए फैक्टर ऑफ p, ठीक है। तो 3 क्या है, इज ए प्राइम नंबर, 3 इज द प्राइम नंबर, 3 तो प्राइम नंबर है ना, दैट डिवाइड्स p स्क्वायर है, then 3 divides p, right? Now 3 divides p, right? So as I see that 3 is a factor of p, I can write is like p is equal to 3c. When 3 is a factor of p, so I can write it like this, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। p का 3 फैक्टर, c की वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है, वो तो हमेशा डिवाइड ही कर रहा है इसको, है ना। सो इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ कि p इक्वल टू 3c, ठीक है। अब इस इक्वेशन को ना, इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में रखते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि पुट दैट इनटू इक्वेशन 1 में आप रख दो इसको, इक्वेशन 1 में आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू सो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर बाई 3, सॉरी दिस इज 9, राइट, दिस इज योर 9, ठीक है, 9c स्क्वायर बाई 3, और आपका ये हो जाएगा k स्क्वायर हो जाएगा, 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 3, राइट, तो 3c स्क्वायर, राइट। और इसलिए हम कह सकते हैं कि जो c स्क्वायर है हमारा q स्क्वायर बाई 3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 है वो q का ही फैक्टर है ना, 3 q का ही फैक्टर है और 3 p का ही फैक्टर है, राइट। सो 3 इज ए फैक्टर ऑफ q, 3 इज ए फैक्टर ऑफ q, ठीक। दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। क्यों है कॉन्ट्रडिक्शन, जो हमने अज्यूम किया था दैट पी क्यू आर को प्राइम्स, तो हमने अज्यूम किया था कि वो एक रैशनल नंबर है ना, रैशनल नंबर है, ठीक। बट वो अब नहीं है क्योंकि उसके तो फैक्टर आ गए। इफ इट हैज सम फैक्टर्स, है ना, जो कि डिवाइड करे इसको, तो वो क्या होगा, रैशनल नंबर, अदरवाइज क्या होगा, इरेशनल नंबर, है ना। सो दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन, राइट।
contradiction to our assumption, that P and Q are co-primes. So root 3 is not rational. तो आपका रैशनल नहीं है, तो जब रैशनल नहीं है तो क्या होगा, therefore root 3 is irrational. ठीक है, ओके. Now move to the next question. So next question is your question 5B part, which is your this one, है ना. Construct the logic circuit and obtain the logic table for the expression this, right. आप यहीं पे देख लो, x2 कॉम्प्लीमेंट यहाँ x3 कॉम्प्लीमेंट है और ये क्या है, कंजक्शन सिंबल है ना, कंजक्शन सिंबल है. तो यहाँ क्या होगा, एंड गेट का यूज़ करेंगे और इन x1 और इसके बीच में और गेट है ना, क्योंकि ये डिसजंक्शन का सिंबल है. तो यहाँ पे और गेट, तो एक और गेट यूज़ करेंगे, एक एंड गेट यूज़ करेंगे इनको निगेट करने के लिए, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है x2 कॉम्प्लीमेंट x3, तो इनके लिए हम नॉट गेट यूज़ करेंगे. तो हम इसको बना लेंगे ना, लॉजिक टेबल भी हम इसके लिए दिखा देंगे और लॉजिक सर्किट भी इसके लिए बना देंगे. और फिर ये वाला क्वेश्चन जो है, तो इन दोनों क्वेश्चंस को और देखते हैं और इट विल कंप्लीट योर दिस, राइट, इट विल कंप्लीट योर question, it will complete your this paper of June 2011. So सबसे पहले हम ये करते हैं कि x1 x2 x3 की ट्रूथ टेबल हम लिख लेते हैं यहाँ पे. तो x3, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, आप ये याद रखिए 0 0 0 है ना, 3 वेरिएबल है ना. तो 3 वेरिएबल हैं तो 0 1 के 3 कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 2⁻³ 8. तो 0 0 0 0 0 1 है ना, 0 1 0 0 1 1, ठीक है, 1 0 0, ठीक है, 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1. अगर आपको ये याद ना रहे कैसे लिखा है, वैसे तो ये बाइनरी कन्वर्ट किए हुए हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7. फिर आप ऐसे लिखता था, पहले 4 0 फिर 4 1, दूसरे वाले में 2 0 2 1 2 0 2 1, और तीसरे वाले में 0 1 0 1 0 1 0 1, अल्टरनेट प्लेस में. तो यू कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दैट, ठीक है, ओके. x1 x2 x3, तो अब 0 है उसको फॉल्स लिख दीजिए, 1 है उसको ट्रू लिख दीजिए बस. तो फॉल्स 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 ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है, नॉट ट्रू फॉल्स ट्रू. इसके लिए क्या होगा, 1 1 यहाँ है तो ट्रू 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 फॉल्स. इसके लिए क्या होगा, ट्रू ट्रू. अब इसके लिए कह रहे हैं कि लॉजिक टेबल आपको बताएं, तो लॉजिक टेबल बता दो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा एक्सप्रेशन था वो क्या था, x1 ये था ना, x1 और x2 कॉम्प्लीमेंट एंड x3 कॉम्प्लीमेंट. तो इसके लिए हमें लॉजिक टेबल बनानी है, तो बना लो. तो सबसे पहले हम ये वाला जो ब्रैकेट में है पहले इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग द बॉडमास रूल, आपको पता ही है. तो सबसे पहले हमें x2 कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, फिर x3 कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, फिर हमें इन दोनों को x2 कॉम्प्लीमेंट और x3 कॉम्प्लीमेंट को एंड गेट से हमें कैलकुलेट करना होगा, एंड देन हम लास्ट में हम करेंगे x1 और दिस एक्सप्रेशन, राइट. तो ये दोबारा ही लिखना है, बस इसकी ज़रूरत नहीं है, इसी को हम लिख लेते हैं यहाँ पर ना, ठीक है. तो इसी को हम यहीं पे लिख देंगे कि भाई ये वाला हम यहाँ पे लेंगे. तो ये हमको ये इवेल्युएट करना है, जो कि बहुत आसान है. तो x2 कॉम्प्लीमेंट क्या है, फॉल्स ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ट्रू ट्रू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर फॉल्स और फॉल्स हो जाएगा, ठीक है.
x3 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्रू, यहाँ फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, इनसे इसको निगेट करना है, ठीक है। x2, अब ये एंड गेट है। एंड गेट क्या होता है, ये कंजक्शन क्या होता है, द ट्रू टेबल ऑफ द कंजक्शन और एंड गेट इज, ये बोथ द स्टेटमेंट और बोथ द इनपुट्स आर ट्रू देन इट विल ट्रू, तो यहाँ ट्रू आएगा, यहाँ ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स 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 फॉल्स, ठीक है। अब ये वाला है तो x1 और ये और ये दोनों करना है। तो इनमें क्या है कि और गेट से है ना, ये और गेट है एक्चुअली, पर हम इसको बोलते क्या है, डिसजंक्शन। सो द डिसजंक्शन विल बी योर, इफ वन ऑफ द इनपुट इज ट्रू देन इट विल बी ट्रू। तो पहले केस में हम देख लेते हैं, इस केस में ट्रू, दूसरे केस में फॉल्स, तीसरे केस में फॉल्स, फोर्थ केस में भी फॉल्स, ठीक है, फिफ्थ केस में ट्रू, और सब ट्रू होंगे, ठीक है, और सब ट्रू, ठीक है, बिकॉज ये और ये सारे ट्रू, ये ट्रू है, ये ट्रू फॉल्स फॉल्स है, ये सब ट्रू है, तो ऑब्वियसली वन ऑफ द इनपुट इज ट्रू, तो ट्रू, ये तो आपकी लॉजिक टेबल, दिस इज योर लॉजिक टेबल। अब आपके लॉजिक सर्किट की बात करते हैं। सो आई राइट इट अगेन, दिस फंक्शन, दिस इज गिवन टू यू विच इज योर x1, राइट, और x2 this complement, and then this is your disjunction and conjunction, and x3 complement. So again I remind you, or is nothing but your, this symbol is OR gate, and this represent your, this is your conjunction, this represent your AND gate, ठीक है। OR गेट के लिए सिंबल जो होता है वो होता है ये, AND गेट के लिए जो सिंबल होता है वो होता है, ठीक है। तो ठीक है, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दिस x1, x2, x3, आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, बट आप ऐसे लिख लो। x2 कॉम्प्लीमेंट हमें सबसे पहले लेना है, तो इसके लिए हम नॉट गेट का यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा x2 कॉम्प्लीमेंट। x3 का भी कॉम्प्लीमेंट करना है, तो हम यहाँ पर x3 का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, तो ये जो है x2 कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा x3 कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब ये एंड गेट से क्या है, कनेक्टेड है, तो एंड गेट हमारा ये होता है, आप इसको यूज कर लो, ये होगा आपका एंड गेट। और जो x1 है इस सारे एक्सप्रेशन के साथ ये और गेट्स के थ्रू कनेक्टेड है, मतलब कंजक्शन के थ्रू, तो आप यहाँ पर इस तरह से इसको कर लो, अगर और गेट, तो दिस इज योर लॉजिक सर्किट, right? This is it. The next question is your, which is your 5th C, right? This question is that between 100 and 1000, how many numbers are there, right? Such that 7 is in the unit place. Remember it, right? 7 is the unit place. So 100 or 1000. So how many numbers are there such that we have fixed, we have 7 at the unit place, which is fixed. So this is your unit place, right? Right? This is your 10th and this is your 100, right? ओके, तो 100 और 1000 के बीच में क्या होगा, बिटवीन, सो बिटवीन इज 101 to 999, सो दिस इज योर 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट का नंबर होगा, यूनिट प्लेस पे आपका 7, ठीक है, ठीक है। तो हाउ मेनी वेज आर देयर टू फिक्स दिस, है ना, हाउ मेनी वेज फॉर दिस यूनिट प्लेस, so we can write this number of ways to place 7 at unit place
इज ओनली 1 ना, एक तरीके से तो फिक्स कर सकते हो आप 7, ठीक है। एंड बाकी इन दोनों के लिए, तो 10th प्लेस पे क्या होगा, नंबर ऑफ वेज टू प्लेस एनी नंबर ना, टू प्लेस एनी नंबर, यहाँ तो कोई भी नंबर हो सकता है 0 to 9, कितने होते हैं 10, ठीक है। एट यूनिट एट 10th प्लेस, 10th प्लेस के लिए कितने होंगे बताओ, 10, ओनली 10 वेज, it can be 0, it can be 1, it can be 3, 2, 3, 4, 6, 7 up to 9, so it is 10. And number of ways to place any number है ना, any number except 0, 1 to 9 at 100 place will be your 9. Why it is so? Because if I took here I have to take any number 0 to 9, here I have to take only 1 to 9 at this place, right, at this place, here we have to 0 to 9 numbers, तो यहाँ तो 10 प्लेस हो गए, यहाँ पर आपके 9 वेज हो गए। ऐसा क्यों है, अगर हम यहाँ पर 0 कंसिडर कर लेंगे, लेट्स से दिस नंबर 0, 3, 7, ठीक, तो ये तो 2 डिजिट नंबर हो गया ना, 2 डिजिट नंबर हो गया, जबकि वो कह रहा है कि नंबर मस्ट बी बिटवीन दिस, इस रेंज में होना चाहिए, तो इस रेंज के लिए 101 से लेकर 999 तक, तो नंबर तो है 37, तो 37 तो इसमें आते ही नहीं, तो दैट्स व्हाई वी आर एक्सक्लूडिंग 0, तो यहाँ कितने प्लेसेस हुए, 9 प्लेसेस, सो टोटल नंबर ऑफ वेज है ना, सो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 100 प्लेस के लिए 9, 10th प्लेस पे आप 0 से 9 तक कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो 10, और इसके लिए ओनली 1, सो 90, दिस इज योर आंसर, ओके। सो आई होप दैट you have understood these concepts. So on the basis of these concepts, there are many questions that are asked in your exams. So if still you have any doubt, please let me know, and thanks for watching. Thank you.